Good morning, students. Yesterday we completed 8 numericals which were based on the inverse trigonometric function, and today we'll be completing the remaining 6 to 7 numericals and just finish off this chapter. The numerical says prove that tan inverse the function is equal to pi by 4 minus half cos inverse x. Now this question starts with a substitution. I'll just write over here, put x is equal to cos 2 theta, and from this equation I'll find the value of theta. For that I have to take cos on the LHS, मतलब ये हो जाएगा cos inverse x, and अगर मैंने ये 2 को डिवाइड कर दिया तो my theta will be half cos inverse x, जो फंक्शन आप यहाँ पे RHS में देख सकते हो. तो फर्स्ट LHS में you have to substitute x is equal to cos 2 theta. तो अगर हम लोग ने x is equal to cos 2 theta यहां पे और यहां पे सब्सटीट्यूट किया तो what do I actually get is 1 plus cos 2 theta. डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 plus cos 2 theta का वैल्यू यहां पे सेपरेटली निकाल लेंगे. 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta as per the trigonometric rules, and 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. मतलब these two terms will be under the square root in the numerator as well as the denominator. Now I'll start with my LHS. Tan inverse square bracket में. Okay. Now if I replace this term with the function on the RHS, तो इसका मुझे रूट निकालना है. तो 2 का रूट तो रूट 2 आएगा, एंड cos स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा, cos थीटा. तो माय न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म इज रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा, एंड जस्ट क्लोज द ब्रैकेट्स. हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डन? x की जगह पे cos 2 थीटा ये पूरे ब्रैकेट में, एंड अगर मैंने वो रिप्लेस किया तो 1 प्लस cos 2 थीटा ये दो टर्म्स एंड 1 माइनस cos थीटा मतलब ये दो टर्म्स विल बी रिप्लेस बाय द RHS. तो इसका मुझे अगर रूट निकालना है तो 2 का रूट एज इट इज लिख दिया, एंड सिंस दीज आर स्क्वायर टर्म्स तो उसका रूट आ गया लीनियर फंक्शन. अभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से रूट 2 विल बी टेकन कॉमन एंड कैंसल्ड आउट. So my function will look like tan inverse of bracket में cos minus sin divided by cos plus sin. And now if you have gone through my yesterday's lectures, तो ये जो bracket है, this bracket was actually simplified by dividing the entire term by cos theta. तो अगर मैंने पूरे bracket को cos थीटा से डिवाइड कर दिया तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. cos थीटा अपॉन cos थीटा इज 1, साइन अपॉन cos इज tan, वापस 1 एंड वापस दिस इज tan. तो ये हो गया 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan. नाउ दिस 1 यहां पे जो ये 1 है एंड यहां पे जो हम लोग ने 1 नहीं लिखा है वो जो 1 है that will be replaced by pi by 4 का tan function. तो tan inverse of tan 45 मतलब pi by 4 minus tan theta upon 1 plus tan pi by 4 multiplied by tan theta. If you want, you can just mention a reason tan 45 इज इक्वल टू 1. समझ में आ रहा है? यहां पे 1 एंड यहां पे जो हम लोग 1 नहीं लिखते, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द सेम फंक्शन इटसेल्फ. सो मैंने tan थीटा को tan थीटा इंटू 1 लिख दिया, एंड दिस 1 इज रिप्लेस्ड बाय दिस फंक्शन. अभी ये जो पूरा ब्रैकेट है इट इज एक्चुअली अ फॉर्मूला फॉर tan ऑफ a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. तो नाउ माई RHS LHS विल बी नाउ रिटन एज tan a माइनस b. तो अगर tan इनवर्स को ये tan फंक्शन कैंसिल हो गया
So I am going to have pi by 4 minus theta. But what was theta? We have already calculated its value. It is half cos inverse x. So now this becomes pi by 4 minus half cos inverse x. And this equation was my required RHS. तो फंक्शन का टाइप अगर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स के रूट फंक्शन में है तो ये सब्सटीट्यूशन आप कर सकते हो. सी ऐसे सब्सटीट्यूशंस डेरिवेटिव्स के चैप्टर में आपको बहुत देखने मिलेंगे. तो वहां पे मैं आपको हर एक इनवर्स फंक्शन का एक स्पेसिफिक सब्सटीट्यूशन सिखाऊंगा एज द टाइप ऑफ द डेरिवेटिव्स कम. बट यहां पे फॉर दिस न्यूमेरिकल you have to remember we have to put x is equal to cos 2 theta. Have you understood this? न्यूमेरिकल नंबर 10. ये न्यूमेरिकल थोड़ा कैलकुलेटिव है. It is asked only one time in the syllabus of 12th standard. I guess it is in the paper of October 2017. 4 marks का न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है. They have asked me that if tan inverse of the bracket plus tan inverse of the bracket is equal to pi by 4, ये इक्वेशन दिया है, this is not to prove, then we have to find the value of x. So now how do we start with the numerical? So based on tan inverse we already have a theorem, we already have a property called as tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. तो LHS में I'll be using this property. So what do I get? एक tan inverse का function, now a bracket, x plus y divided by 1 minus x इंटू वाई. समझ में आ गया? ये x है, ये y है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, मतलब दोनों के न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लीकेशन. ब्रैकेट कंप्लीटेड एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4. नाउ ये जो tan इनवर्स है वो हम लोग LHS में शिफ्ट करेंगे, मतलब ये हो जाएगा tan पाई बाय 4. एंड व्हाट इज tan पाई बाय 4? 1. एंड दीज फंक्शंस विल बी हेंस क्रॉस मल्टीप्लाइड. तो नाउ यहां पे आई विल गेट x minus 1 into x plus 2, my first bracket of the numerator, plus x minus 2 into x plus 1. अभी हम लोग यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन में कट शॉर्ट करेंगे. ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली ये पूरा डिनोमिनेटर यहां पे मल्टीप्लाई होगा 1 से. बट इफ यू कैन सी दिस, ये a प्लस बी a माइनस बी है. तो when I cross multiply that function, I'll directly write x square minus 4. ये कहां से आया? a plus b, a minus b, मतलब a square minus b square. This minus sign, a plus b, a minus b, a square minus b square. अभी ये दो फंक्शन जब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं तो ये डिनोमिनेटर में भी आएगा. तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर कट हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 1. ये 1 कहां से आया? तो tan पाई बाय 4 इज 1. अभी आपको ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सॉल्व करना है. तो व्हाट डू यू गेट इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस ये ब्रैकेट एक्सपांड करो. अभी ये डिनोमिनेटर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसमें सिंप्लीफिकेशन कैसा है? एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. -4 माइनस माइनस प्लस 1 मतलब -3. तो ये -3 हो गया यहां पे. नाउ सी दिस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x minus 2x cancelled, minus x plus x cancelled, -2 minus 2 minus 4, and that -4 when it goes on the RHS +4 हो जाएगा and -3 plus 4 is 1.
अभी ये 2 को यहां पे डिवाइड करो, आई राइट द रिमेनिंग पार्ट ओवर हियर। तो एक्स स्क्वायर आ गया हाफ, बट दे हैव आस्क्ड मी एक्स, तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। हैव यू अंडरस्टूड? सिंपल कैलकुलेशंस है, आपको सिर्फ ये ब्रैकेट जो है वो सॉल्व करना है यूजिंग द रूल ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व। सी, जब कभी भी क्वेश्चन में सॉल्व लिखा है, इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड द आंसर फॉर द वेरिएबल्स, एंड यहां पे जो वेरिएबल है मतलब द एंगल इज x। सो सी, 2 tan inverse of cos x is equal to tan inverse of 2 cosec x. Now this numerical start with the formula, starts with the rule 2 tan inverse x is equal to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. 2 tan inverse x के टोटल 3 प्रॉपर्टीज हैं। यहां पे साइन आएगा, कॉस आएगा, टैन आएगा। तो मैंने यहां पे टैन का प्रॉपर्टी क्यों चूज किया है? बिकॉज आरएचएस में भी टैन फंक्शन है, तो एलएचएस में टैन इनवर्स अल्फा एंड आरएचएस में टैन इनवर्स बीटा, तो वी कैन कंपेयर अल्फा एंड बीटा, मतलब इनवर्स फंक्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पे जो ये x है उसे हम लोग रिप्लेस करेंगे बाय द टर्म कॉस x। तो नाउ माय एलएचएस विल बी टैन इनवर्स 2 cos x divided by 1 minus cos square x is equal to tan inverse 2 cosec x and the bracket। अभी ये दोनों tan inverse जो है वो कंपेयर हो जाएंगे, तो this bracket is equal to this term। तो now what do I get? ये न्यूमरेटर का 2 cos x I'll be writing as it is। डिनोमिनेटर ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस टर्म आई बी राइटिंग एज कोसेक एक्स। यहां पे आप रीजंस दे सकते हो। यू हैव रिप्लेस्ड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एज 1 का आइडेंटिटी यूज करके आपने ये डिनोमिनेटर जो है वो साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। नाउ द न्यूमेरिकल गोज वेरी सिंपल, 2 को 2 कट हो गया। ये कोसेक एक्स जो है वो 1/sin एक्स है, तो दिस इज कॉस अपॉन साइन स्क्वेयर 1/sin। यहां का एक साइन यहां से कैंसिल हो गया, तो नाउ दिस इज कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन मुझे मिलेगा कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। एंड इफ कॉट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मेनी स्टूडेंट राइट ओनली π/4, मतलब वी नो दैट कॉट π/4 इज 1। बट अगर आपको थोड़ा ये न्यूमेरिकल एक्सटेंड करना है तो व्हाट यू कैन से इज कॉट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये न्यूमेरिकल ऐसा भी लिखा जाएगा। पहले 1 को मैंने कॉट π/4 से रिप्लेस कर दिया। द मेथड दैट वी यूज्ड ड्यूरिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेम यहां पे यूज करना है। नाउ कॉट थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज थर्ड क्वाड्रेंट, तो cot π/4 will be written as pi plus π/4। तो pi plus π/4 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो pi plus π/4 gives me 5 π/4, and hence I can say x is equal to π/4 as well as 5 π/4। अगर आप ये पार्ट मिस आउट भी कर जाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूमेरिकल जो है वो आप जितना π/4 तक लिखोगे तो भी इट इज एक्सेप्टेबल। सी, ये न्यूमेरिकल आप कैसे चेक कर सकते हो कि अगर π/4 की जगह पे 5 π/4 आपने यहां पे सब्सटीट्यूट किया तो ये दोनों इक्वेशंस LHS और RHS जो है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। हम लोग जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व ये न्यूमेरिकल का आंसर लिखते हैं तो वी हैव टू फाइंड the possible values, permissible values, the values which satisfy the trigonometric function as well as the function. We have to think both the ways and then we have to conclude the numerical with our answers. Have you understood this simple numerical? Next question, tan inverse 2x plus tan inverse 3x is equal to π/4 है,
तो यू हैव टू फाइंड x. द न्यूमेरिकल दैट वी डिड प्रीवियसली, जहां पे हम लोग ने x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 निकाला था, सेम फंक्शन है. यहां पे द प्रॉपर्टी दैट विल बी यूज्ड इज tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse x plus y upon 1 minus xy. तो x मतलब ये पूरा टर्म 2x, y मतलब ये पूरी टर्म 3x. सो देखो tan inverse 2x plus 3x upon 1 minus 2x multiplied by 3x पाई बाय 4. नाउ ये tan इनवर्स आप ले लो RHS में, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 विच इज 1. तो 2x प्लस 3x 5x. सही है. अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 1 माइनस 6x स्क्वेयर. रीअरेंज द इक्वेशन. Now you have to simplify this quadratic to solve the answer. So multiplication is minus 6, addition is plus 5. So these will be my factors. ठीक है. 6x कॉमन, तो ब्रैकेट में x plus 1, minus 1 कॉमन, तो ब्रैकेट में x plus 1 is 0, and hence x is equal to minus 1 और 1/6. अभी ये क्वेश्चन में यहां पे जो मैंने परमिसिबल वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज का कंसेप्ट आपको बताया, वो यहां पे आपको अप्लाई करना है. क्यों? बिकॉज इफ आई पुट x इज इक्वल टू -1 इन दिस इक्वेशन, तो ये दोनों फंक्शंस, ये दोनों टर्म्स निगेटिव हो गए. बट tan इनवर्स ऑफ निगेटिव नंबर्स इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव आंसर विच इज π/4. तो ये न्यूमेरिकल में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, for x is equal to -1, both terms go negative and do not give a positive answer. ये जस्टिफिकेशन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, नॉट नेसेसरी जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है. तो if x is equal to -1, both the terms go negative and do not give a positive answer, so you have to say we discard the value of x equal to -1, and therefore for this numerical we have only one solution, that is x is equal to 1/6. आप ये जस्टिफिकेशन नहीं भी लिखते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आप डायरेक्टली लिखो x नॉट इक्वल टू -1 एंड हेंस x इज इक्वल टू 1. एंड इफ यू वांट टू गिव द जस्टिफिकेशन, आप ये ऐसा रीजंस दे सकते हो. समझ में आ गया? तो जब कभी भी इफ अ फंक्शन इज गिवन, सॉल्व द इक्वेशन. इन दोज केसेस यू हैव टू फाइंड द वेरिएबल x. ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व भी एग्जाम्पल के लिस्ट में भी है, तो you can practice those examples at home. and we have to use 99% cases में हमारे पास tan की ही प्रॉपर्टी पूछी जाती है, and RHS में the number will be, the angle will be 45, because tan 45 is 1, so वो calculations में आपको थोड़ा help करेगा. Now we have two numericals for the final conclusion of the chapter. Those two numericals will be given in the next slide. The next numerical, prove that 2 tan inverse half plus tan inverse 1/7 equal to tan inverse 31/17. This numerical is a very important numerical, 3 times asked numerical, and ये numerical ऐसा है जिसमें आपको दो properties यूज करनी है. I'll write the properties. पहले 2 tan inverse x, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे बाय tan inverse 2x upon 1 minus x square, the property that we have already used in the previous question. Why tan inverse? क्योंकि मुझे ये दोनों tan inverse कंबाइन करने हैं, तो यहां पे भी इनवर्स फंक्शन tan के फॉर्म में ही चाहिए. एंड देन कनेक्टिंग टू दिस tan inverse ऑफ द ब्रैकेट, मान लो ये a है, ये b है, तो आई कैन से tan inverse ऑफ a
प्लस tan इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू tan इनवर्स, मतलब ये RHS का आ गया, तो इट इज a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। यहां पे मैंने बहुत बार x और y लिखा है, बट सिंस द फंक्शन ऑलरेडी इज इन टर्म्स ऑफ x, तो वो कंफ्यूजन नहीं करने के लिए मैंने यहाँ पे ए बी का यूज किया। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये tan इनवर्स का फंक्शन टू tan इनवर्स हाफ का फंक्शन इसमें कन्वर्ट करो, बाद में ये दोनों ऐड करके यू विल गेट द फाइनल वन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, विदाउट स्टार्टिंग विद दी LHS इसका कन्वर्जन पहले करके लेते हैं। तो इट इज tan इनवर्स 2 इंटू हाफ माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, मतलब 1/4। नाउ दिस 2 and हाफ कैंसिल, तो न्यूमरेटर में 1 आ गया, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 3, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो दिस आंसर इज tan इनवर्स ऑफ 4/3। अभी आई स्टार्ट विथ माई LHS। ये टर्म replaced by this derived term plus tan inverse 1/7, keep it as it is। अभी सॉल्व करो, tan inverse a plus b divided by 1 minus a into b। सी अगर आपको ये न्यूमेरिकल अभी आगे सॉल्व नहीं करना है तो यू कैन डायरेक्टली राइट दी RHS, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टेप यहां पे करके दिखाई है। तो यहां पे दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो अभी 28 प्लस 3 31 अपॉन 7 3 21 डिवाइडेड बाय ये 21 क्रॉस मल्टीप्लाइड माइनस 4 इंटू 1, तो 21 माइनस 4 इज 17 बाय 21। 21 cancel, so what we remain with is inverse function of 31 by 17, and this is what we were expected to prove equal to RHS। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, trigonometric function is such a chapter which is 120% going to be dependent on the properties, formulas, your practice। If you miss out those terms, then these chapters are not going to give you any marks। And अगर आपको trigonometry आती है तो definitely derivative integration में आपको बहुत ज़्यादा help मिलने वाली है। The final question for today and for the chapter as well। See, मैं यहाँ पे ऐसे questions cover कर रहा हूँ जो आपको समझने में भी easy है, जिसका न्यूमेरिकल सेक्शन में क्वेश्चन पेपर्स में आने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो टेक्स्ट बुक में है, बट यहाँ पे मैंने नहीं लिए। विल बी कंडक्टिंग डिफरेंट सेशंस, लाइव लेक्चर्स इन द क्लासरूम आफ्टर द लॉकडाउन इज कैंसल्ड आउट। तो वो न्यूमेरिकल्स हम लोग क्लासरूम में लेंगे, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6। नाउ यू विल बी सेइंग ये कितना इजी क्वेश्चन है, ये इनवर्स को ये साइन हटा दिया तो आंसर आ गया 5π/6। लॉजिकली इट इज ट्रू, बट साइन इनवर्स का आपने अगर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू अगर स्टडी किया है एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ ITF, तो यू माइट नो दैट वी नो दैट फॉर साइन इनवर्स x the branch value is minus π/2 to plus π/2. This was the range which is allotted for sin inverse x. And if मैंने अगर ये क्वेश्चन का आंसर लिखा, साइन को साइन कैंसिल करके 5π/6, तो 5π/6 is an angle which is greater than 90, it is equal to 150। तो ये रेंज को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये न्यूमेरिकल का आंसर 5π/6 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली कॉस इनवर्स का जो ब्रांच वैल्यू है वो 0 से लेके पाई तक है, तो ये 8π/3 मतलब 480 डिग्रीज, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस। tan का -π/2 और π/2 के बीच में है, बट दिस इज 135, यू हैव टू कन्वर्ट दिस। तो ये कैसे कन्वर्जन होगा,
I'll show you. Sin 5 pi by 6 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहां पे यूज अलाइड एंगल की टेक्निक. Sin 5 pi by 6 will be pi minus pi by 6. But what is pi minus theta? Sin of pi minus theta, is it sin theta? 11th स्टैंडर्ड का अलाइड एंगल का रूल, sin pi minus theta is equal to sin theta. मतलब ये फंक्शन का वैल्यू और ये फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो नाउ ये ब्रैकेट विल बी रिप्लेस्ड बाय ये ब्रैकेट, एंड हेंस आई गेट sin inverse of sin 5 pi by 6, which will be written as, and this will be written as pi by 6. Now ये जो एंगल है तो ये ब्रांच वैल्यू को भी सेटिस्फाई करता है, फंक्शन को भी सेटिस्फाई करता है, तो ये जो pi by 6 का आंसर है विल बी माई फाइनल इक्वेशन. तो ये न्यूमेरिकल्स 100% अभी तक जितने भी पेपर में ये न्यूमेरिकल पूछा गया है, इट इज अ स्पेशल एमसीक्यू. 1 मार्क या फिर 2 मार्क के लिए एमसीक्यू पूछा जाएगा और ऑप्शन में आंसर 5 pi by 6 भी प्रेजेंट रहेगा. बट देन इट इज अपॉन यू कि हाँ मुझे समझना चाहिए कि इनवर्स कट करने के बाद ये जो एंगल आता है वो भले ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, but it is not satisfying the branch value, so you have to make those adjustments. Have you understood? Now I'll show you how to do it for tan. आप cos का try करो. If not possible for you, then I'll be giving you the solution. Now tan inverse of tan 3 pi by 4, don't write it as 3 pi by 4. यहाँ पे I'll start by saying we know that the branch value for tan inverse x is, ये ऐसे लिखेंगे, यहां पे इक्वल नहीं आएगा, यहां पे आप इक्वल लिख सकते हो क्योंकि इक्वल अगर tan इसके लिए लिया, tan के लिए, तो 90 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन है, सो वी आर नॉट सपोज टू टेक इक्वल. तो आपको ऐसा एक एंगल निकालना है जो ये रेंज को सेटिस्फाई करेगा. सो नाउ हाउ डू आई स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल. तो आई हैव tan 3 pi by 4 का नंबर. तो पहले 3 pi by 4 ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? सेकेंड. तो आई विल बी राइटिंग इट एज ऐसा. अभी अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज करो. tan pi minus theta is minus tan theta. सही है ना? But what is minus tan pi by 4? It is tan of minus pi by 4. क्योंकि आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है minus tan theta मतलब tan of minus theta. So now what do we proved is कि tan 3 pi by 4 की वैल्यू ले लो या फिर tan minus pi by 4 की वैल्यू ले लो, ये सेम है. Therefore यहां पे इसकी जगह पे ये आएगा बिकॉज 3 pi by 4 इज नॉट सेटिस्फाइंग माई ब्रांच वैल्यू, तो आई विल रिप्लेस इट बाय माइनस tan pi by 4. नाउ ये कैंसल हो जाएगा, मतलब यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी एंड व्हाट डू आई रिमेन विथ माइनस pi by 4. एंड माइनस 45 इज एन एंगल विच इज लाइंग बिटवीन माइनस 90 to plus 90. सो फॉर दिस न्यूमेरिकल माई सोल्यूशन इज दिस. सो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, तो वो न्यूमेरिकल्स आप डेफिनेटली ट्राई करो. सेंड मी दी सॉल्यूशंस, आई विल गिव यू द एग्जैक्ट आंसर. अगर कुछ भी गलत है उसमें तो डेफिनेटली आई विल रिवर्ट यू बैक. सो हेंस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. See, we have taken the syllabus very slowly and steadily. I daily keep posting half an hour's lecture because I don't want you guys to sit for 1.5 hours on the Zoom app, on the Google Duo app and just listen to me doing nothing. Because I have seen many students in physics and chem lecture, they just log into the Zoom app and they go to sleep. But this is not I want you to do. आप daily half an hour का study करो maths का, it is more than enough. इसलिए दिस वीडियोज विल बी फॉर एवर विथ यू. जब कभी भी आपका मन चाहे कि मुझे ये पार्ट वापस से सीखना है तो आप वो
पार्ट यूट्यूब पे जाके वो लिंक वहाँ पे एंटर करके आप पूरा वीडियो देख सकते हो। जूम में क्या होगा, वंस द लेक्चर इज डन, इफ एनीथिंग दैट यू वांट टू रिवाइज फ्रॉम दैट इट वोंट बी पॉसिबल। तो उसका रिकॉर्डिंग अगर आप करते हो अलग से तो इट इज डिफरेंट थिंग, बट व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम प्रिजर्विंग दीज लेक्चर्स ऑन यूट्यूब फॉर योर फ्यूचर एनालिसिस। जो कभी आपको अगर कोई भी वीडियो वापस से देखना हो इन एब्सेंस ऑफ माइंड, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। So we have finally completed the chapter of trigonometric functions. Parallelly वहाँ पे 3-dimensional geometry का भी numerical section मैंने start किया है, जो मैं कल complete करूँगा, and उसके बाद will be completing the chapter of mathematical logic. तो हमारा mathematics 1 के जितने भी maximum chapters होंगे वो हम लोग ये लॉकडाउन पीरियड में complete करेंगे। जैसे ही लॉकडाउन is over, we'll start with the second part.